We are, of course, continuously tracking that rescue operation taking place at Uttarkashi at the tunnel mishap site. And as we heard a short while back in the briefing being done by the NDMA, that they're very close to actually bringing the 41 trapped workers out, but there's still a bit of distance to go. In fact, if I can just sum up some of the key takeaways from that briefing, the NDMA member there in fact said that there are at least 2 meters of drilling which needs to be done. So that work still has to be done before they can actually start pulling out the workers one by one. Secondly, he also said that they are taking all the safety precautions which need to be taken. In fact, he said it in so many words that they are not in any sort of a hurry, which is why the entire operation might stretch for 4 to 5 more hours. But at this point in time, they are also very hopeful that they will be able to take the workers out as soon as possible. Right from the beginning, they have not given any sort of a timeline as to how much time it would take for the trapped workers to be pulled out. But it seems that the entire rescue operation is nearing its end, and it might end this evening itself when the workers, if the workers start to be taken out. What we do know is that the pipe which has been laid in order to pull the workers out has in fact been established properly in the tunnel. The rescue team, which had been manually digging into that area in order to put the pipe in place, the rat miners, the special rescue team which had been deployed over there, they have in fact completed their work. We've also seen visuals coming in of a makeshift hospital, beds being put in place, doctors and nurses on standby, ambulances on standby. They are all waiting at the mouth of the tunnel, the exit entry point of the tunnel. So those arrangements are all in place. Chief Minister Dhami also, of course, there accompanying some of the family members who are waiting for the workers to be taken out. Anxious wait for those families. It's been 17 long days that the family members have in fact been hoping and praying that their loved ones are taken out safely from that tunnel. And but of course, as we said, that a few more hours of wait may be in store for the rescue officials actually to take out the workers as per the protocol which has been laid out. Those are the live pictures on your screens there from the exit entry point of the tunnel. We are still waiting to see if any further developments take place. But as I mentioned, that the NDMA official clearly said that they are going to follow all the safety protocols. At least 4 to 5 minutes will be taken in order to take each of the workers out safely. Let's just listen into some of the key highlights from that briefing earlier. टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement, I would say. कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है. पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे. तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में. उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है. इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चने आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली. तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज. For my technical knowledge, but I'll rely more on Vishal Chauhan साहब to confirm that. Once you have got through, जब through and through हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है. ठीक है. और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट. ये भी, इसके अंदर भी अड़चन आएंगी. Right, I'm joined by my colleague Kishore, who has, of course, been tracking all the developments right from the beginning on the spot there at the Silkyara tunnel in Uttarkashi. Kishore, अभी के जो हालात है, अगर पहले आप एक क्विक अपडेट दें हमारे दर्शकों के लिए.
देखिए, अभी के हालात जो अपडेट है उसमें सिर्फ इतना ही है कि मुख्यमंत्री अभी अंदर मौजूद है, उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मौजूद है। लगातार अभी ये चीज मानी जा रही थी कि बहुत जल्द आएंगे, लेकिन थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि वो लोग जब जैसे ही बाहर आएंगे वो करीबन 1.5 से 2 घंटे जो अंदर एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया उसमें रहेंगे। बाहर का अगर मौसम करूं तो इस वक्त टेम्परेचर काफी गिरा हुआ है, काफी ठंड हो गई है। यही वजह है कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उनको जो एटमोस्फेयर है वो एकदम बदला मिलेगा और उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए, उनको नॉर्मल लाने के लिए अंदर अस्पताल जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है उसमें रखा जाएगा। फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है, अभी थोड़ा और समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मुश्किलें आ रही थी उनको पार पा चुके हैं और लगातार जिस 17 दिन यानी आज 17वां दिन लगभग खत्म होने को है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि जब ऑफिशियल यानी जो टनल से मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद वो एक ब्रीफिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है तब वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या हुआ और कब तक ये लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हैं। लेकिन फिलहाल जो एम्बुलेंस हो गई, पैरामेडिक्स हो गए, मेडिक्स हो गए, डॉक्टर की टीमें हो गई, इसके अलावा जो पुलिस उनको पूरा एरिया को ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए इनको ले जाएंगे, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी चिन्यालीसौर जो एयर स्ट्रिप है वहां पे रखा गया है और ये माना जा रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए उनको आगे एयर एम्बुलेंस से लेकर ऋषिकेश तक पहुंचाया जा सकेगा। ये सारी प्रक्रियाएं लगातार चल रही है। फिलहाल अभी का अपडेट फिलहाल यही है कि मुख्यमंत्री अभी अंदर है और लगातार वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने अभी मोर्चा संभाला हुआ है। जी किशोर, एक बात बताइए, अभी शाम होने को आ रही है, तो इस हालात में रेस्क्यू ऑपरेशंस और भी चैलेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि एनडीएमए के ब्रीफिंग में थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि 2 और मीटर की ड्रिलिंग शायद अभी बाकी है, उसके बाद एक एक करके वर्कर्स को निकाला जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो शाम के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस और भी चैलेंजिंग और शायद और भी स्लो हो जाएगी, ये आशंका है? नहीं, ऐसा ये आशंकाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो टनल के 230 मीटर अंदर चल रहा था। वैसे भी वहाँ का जो माहौल है वो एक तरह से लाइट में वहाँ पे काम किया जा रहा था वहाँ पर, और उसका डे लाइट से कोई मतलब नहीं है, अंधेरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब वो बाहर ले जाया जाएगा उनको थोड़ा बहुत रात का अफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऑपरेशन लगातार 230 मीटर अंदर जमीन के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पर रात का या फिर दिन का कोई असर नहीं होता। वहां लगातार एक ही तरह का वातावरण है, यानी लाइट पे ही वहां लगातार काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको ले जाकर यहां पर अंदर रखा जाए। क्योंकि मैं जिस तरीके से अभी जानकारी दी थी कि मौसम थोड़ा सा यहाँ पे मौसम काफी बदल गया है, काफी ठंड हो गई है और जैसे जैसे टाइम थोड़ा और बढ़ेगा तो यहाँ पे ठंड और बढ़ेगी और उस मौसम से यानी ये बाहर का मौसम और अंदर के मौसम में काफी अंतर है, तो उनको हेल्थ पर इफेक्ट ना हो, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर उनको धीरे धीरे यहाँ से निकाला जा सकेगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वेदर का एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये जो 2 और मीटर्स की ड्रिलिंग बाकी है जो कहा जा रहा है, इसमें और क्योंकि आप पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस को ट्रैक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इसमें और कितना टाइम आपके हिसाब से लगना चाहिए? अगर एक समय की बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 घंटे, वो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं और इसका टाइमिंग का रखना चाह रहा हूं क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो 2.5 मिनट से लेकर 4 मिनट तक एक आदमी को आने में और वापस स्ट्रेचर अंदर भेजने में, तो ये 2 से 2.5-4 मिनट का अंतराल है। एक तो वो समय, दूसरा वो समय है कि जब इनको वहां से निकाल लिया जाएगा और जो अंदर टेम्परेरी हॉस्पिटल रखा है वहां उनको रखा जाएगा, वहां पर थोड़ी देर उनको रखा जाएगा। जो अंदर का टेम्परेचर, चूंकि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग है, वहां पे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन बाहर आकर मौसम काफी ठंडा है और यहाँ पर अभी जिस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है, हवा बहुत चल रही है, ठंडी हवा है, लेकिन फिर उनको उस टेम्परेचर में ढालने के लिए, बॉडी को उनको ढालने के लिए थोड़ा वक्त यहाँ पर देंगे, तो इसलिए 2 से 2.5 घंटे का समय रहेगा जिसमें वो यहाँ से टनल से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस में होंगे, एम्बुलेंस में उनके परिवार वालों के साथ उनको यहाँ से चिन्यालीसौर जो हॉस्पिटल है वहां भेजा जाएगा। जी किशोर, जैसे आपने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक आईएएफ चॉपर भी स्टैंड बाय पे है, बट अगर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी 3 घंटे लगे तो उसकी इस्तेमाल हो पाएगी? विल द आईएएफ बी एबल टू एक्चुअली फ्लाई आउट दी वर्कर्स, या वो एक प्लान बी है, मतलब पहला प्लान वुड बी टू टेक देम बाय रोड? इज दैट व्हाट द रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैव प्लान्ड?
जो अभी इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है चिनूक वो यहाँ पहुंचा है। थोड़ा ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत इमरजेंसी हो तब उसको फ्लाई किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उसको स्टैंड बाय में ही एक तरह से, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन थोड़ी जल्दी हो जाता, यानी अगर करीबन 2 से 3 घंटे अगर पहले ही हो चुका था, हो सकता था कि उन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था एज ए उनकी हेल्थ कंडीशन को देखकर। लेकिन अभी चूंकि मौसम धीरे धीरे जिस तरीके से अंधेरा हो रहा है और जो ऑपरेशन है वो लगभग 2 से ढाई घंटे उसमें लग सकता है, और उन लोगों को बाहर आने में, हॉस्पिटल में उनको वेटिंग कराया जाएगा, वहाँ इलाज किया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, उसके बाद से वो थोड़ा टाइम ही लग सकता है। और जाने में यहाँ से चिन्यालीसौर एक लगभग 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे तब जब यहाँ पर सिंगल आदमी अपनी गाड़ी लेके या फिर दूसरी गाड़ी से जाता है, ये एम्बुलेंस का काफिला चलेगा तो ये स्पीड नहीं होगी, तो इसमें से थोड़ा समय और लग सकता है। इसीलिए वहां पर चिनूक हॉस्पिटल है, हो सकता है कि कल सुबह अगर किसी की कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि सुबह, जैसे ही सुबह होगी, मौसम अंधेरा छटेगा, उसके बाद इनको यहाँ से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा जा सकता है। लेकिन ये पूरी तैयारियां जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से प्रशासन ने पूरी तरह से प्लान बनाए हैं और अभी फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा है कि कब वो टनल से बाहर आए। जी किशोर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप इतने दिन से, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया टाइम जब ये वर्कर्स ट्रैप्ड है अंदर टनल के, तो उनकी अभी सिचुएशन क्या है? क्योंकि एक बार ही हम लोगों ने देखा, जो वीडियो रिलीज़ किया गया रेस्क्यू टीम के तरफ से, जो वर्कर्स अंदर है उनकी जो पिक्चर्स बाहर आई, अभी उसके बाद और हमने कोई नेक्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स नहीं देखे उन वर्कर्स के। तो आपके सूत्रों के हिसाब से जो 41 ट्रैप्ड वर्कर्स है, उनके हालात क्या है? इनफैक्ट दे मस्ट ऑल्सो बी वेरी एंग्शियस, क्योंकि आज सुबह से ही ये एक देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि शायद और कुछ ही देर में वो लोग बाहर आए। तो अभी उनकी स्थिति क्या है, क्या जानकारी है उस बारे में? बिल्कुल, अगर पहले दिन से लेके आज 17वां दिन है, लगातार एनडीटीवी की टीम यहाँ लगी थी और एक एक पल की जानकारी, किस तरीके से उनकी हालत है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आएंगी, क्या क्या मशीनरी होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारी जानकारी पल पल की अपडेट मिलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनकी सेहत कैसी है, उनका हाल चाल कैसा है, वो कैसे है, इस बारे में लगातार जो उनके परिजन से उनसे बातचीत हो रही है, ऑफिशियल जानकारी देते रहे वो, और ये चीज़ें बताते रहे, और कुछ हमारे जो सोर्सेज थे वो जानकारी देते रहे। उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ठीक है। कुछ लोगों को अगर सर दर्द या फिर कुछ दिक्कतें हो रही हो तो उनको दवाइयां भेजी गई। शुरू के करीबन अगर देखा जाए तो शुरू के 9 दिन, जो 9वें दिन में ब्रेक थ्रू मिला था कि 53 मीटर का पाइप, जो फूड पाइप था 6 इंच का, वो आर पार हो गया था और उससे जो दलिया, खिचड़ी या फिर फल फ्रूट भेजे गए थे और कुछ कपड़े भी भेजे गए थे उसे, और टूथपेस्ट, इस टाइप से उनको सामान भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही थी कि उनकी हेल्थ ठीक है। उसके बाद जब 6 इंच का पाइप गया था तो वहाँ खाना और ठीक ठाक भेजा गया, जो तरल पदार्थ टाइप का खाना था वो भेजा गया। उससे पहले उनको ड्राई फ्रूट्स और चने, मूंगफलियाँ और उबले चने ये भेजे जा रहे थे, लेकिन उनकी सेहत ठीक है। आज सुबह ही उनके जो परिजन थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका बातचीत हुई है, वो ठीक है और इस बात से वो उम्मीद है कि उनको वो जल्द बाहर आएंगे। और उनकी सेहत की अगर बात की गई तो वो सेहत उनकी ठीक है। उनको अंदर मेडिटेशन और योगा करने को कहा गया, और अंदर कुछ लोग जो इस मेडिटेशन और योगा जानते हैं वो उनको वहाँ पर सभी मजदूरों को मेडिटेशन और योगा करा रहे हैं, उनको वॉक करवा रहे हैं, और ताकि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहे।